Good morning, children. How are you all? Welcome back to our English class, children. Okay, in our previous class, we were reading lesson 2 and we have read 2 pages. Today we will finish this story, children. Yesterday we were that Nag and Nagina were planning to kill Teddy and his whole family so that they could easily live in the bungalow and the garden for their kids, right? They will within 1 or 2 days their eggs are going to hatch, and so they needed some space for their children to live, so they decided to kill Teddy and his parents. But who heard all this? किसने सुन लिया ये? Yes, Rikki Tikki heard all this and he just got frightened and he thought of killing Nag and Nagina. He decided to kill Nag and Nagina. But when he saw the size of Nag, he was 5 feet, so he got frightened. Who? Rikki Tikki. Rikki Tikki उसके साइज को देख के डर गया. He was 5 feet tall. So now what happened? It's all about this. Now let's read it. What am I to do? Thought Rikki Tikki. If I kill him here, Nagina will know. But if I fight him out in open, the odds will be in his favor. Now he is saying, what am I to do? बोले अब मैं क्या करूं? Thought Rikki Tikki. और Rikki Tikki, a mongoose, thought अब मैं क्या करूं? What should I do now? Means अगर मैं इसको यहाँ बाथरूम में मारता हूँ तो Nagina will come to know and she will beat him and she will bite Rikki Tikki. But उसको अगर बाहर ले जाके मारता है, बाहर ले जाके लड़ता है, in outside, then also Rikki Tikki is in backwards. How? फिर भी Rikki Tikki को डर है. कैसे? Because in open Nag will be more powerful than Rikki Tikki because of his size. He will have more space and he will be able to kill Rikki Tikki very easily. And secondly, Nagina too will be with him in open also. So now Rikki Tikki is very confused and very worried. What should he do now? Nag waved to and fro, and then Rikki Tikki heard him drinking from the water jar that was used to fill the bath. Now Nag waved to and fro. Children, to and fro का मतलब ऐसे. सांप जो है ऐसे ऐसे करता है, right? So he saw Rikki Tikki saw Nag waving like this, to and fro, and heard him. He didn't see him. Heard him drinking water from a jar. एक जार से पानी पी रहा था जिससे हम उस वाटर को भी और उस जार से वो बाथ टब जो था उसमें पानी डालते थे. सो ही सॉ Nag ड्रिंकिंग दैट वाटर फ्रॉम दैट जग. Nag wrapped himself coil by coil round the bulge at the bottom of the water jar and Rikki Tikki stayed still as death. Now अब नाग ने क्या किया? वो वाटर जार के चारों तरफ ऐसे गोल चक्कर लगा लिया. एज यूजुअल सांप जो करते हैं, स्नेक्स डू, उसने उसको चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा लिया. कॉयल बॉय कॉयल मीन्स एक के ऊपर एक ऐसे जब हम बांधते हैं तो उसने कॉयल बॉय कॉयल उसने उसको ऐसे कर लिया. राउंड द बल्ज एट द बॉटम ऑफ द बल्ज मीन्स जो वाटर जग होता है चिल्ड्रन, जो वाटर जार होता है वो नीचे से मोटा होता है और ऊपर से थोड़ा कम होता है. तो उसने नीचे से जो मोटा था, जो चौड़ा था, उधर से उसने नाग ने जो था उसको पूरा गोल गोल चक्कर वहां से लगा लिया उसके ऊपर, उसको पूरा घेर लिया. एंड Rikki Tikki बिल्कुल स्टैचू बन के, स्टिल एज डेथ, मतलब जैसे इंसान की किसी के एनिमल की किसी की डेथ रहती है तो वो बिल्कुल मूव नहीं करता, बिल्कुल भी मूव नहीं करता. तो Rikki Tikki ठीक सेम पोजीशन में हो गया. ही वॉज नॉट मूविंग. He became like a statue. After an hour, he began to move inch by inch towards the jar. और 1 घंटे बाद बिल्कुल धीरे धीरे, इंच बाय मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा
वो धीरे धीरे उस जार की तरफ जाने लगा। हु? रिकी टिकी। He was moving like this and waited like this because he didn't want that Nag should know that Rikki Tikki is there and he is watching him. वो नहीं चाहता था कि नाग उसको देख ले और उसको पता चल जाए about Rikki Tikki. Nag was asleep and Rikki Tikki looked at his big back, wondering where would be the best place to get a good hold. अब नाग जो था वो सो गया और रिकी टिकी वॉज अवेक और वो ये ढूंढ रहा था कि उसकी इतनी बड़ी बॉडी में उसको कहाँ बाइट करे, कौन सी बेस्ट प्लेस है जहां बाइट करते वो उसके ऊपर काबू पा सकता है, नाग को उसको पकड़ के रख सकता है, कौन सी सबसे अच्छी प्लेस है। इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप सेड रिकी टिकी ही विल फाइट। उसने कहा अगर मैं इसकी पीठ नहीं तोड़ता, एक बारी में उसकी पीठ पे ऐसा जंप ना लगा दूं कि वो दोबारा ना खड़ा हो पाए, तो फिर वो तो ऐसा ना कर पाया तो वो मेरे साथ फाइट करेगा। ही विल फाइट विद मी एंड इफ ही फाइट्स ओ रिकी ही लुक्ड एट द थिकनेस ऑफ द नेक बिलो द हुड बट दैट वॉज टू मच फॉर हिम एंड अ बाइट नियर द टेल वुड ओनली मेक नाग एंग्री। उसने कहा अगर वो उससे लड़ा, ही विल फाइट विद रिकी टिकी, नाग विल फाइट विद रिकी टिकी, अगर उसने एक ही बारी में उसको मतलब एक ही जंप में, रिकी टिकी कह रहा है, सोच रहा है कि मुझे एक ही जंप में उसको ऐसी जगह काटना है ताकि वो दोबारा ना खड़ा हो पाए। अगर वो खड़ा हो गया देन ही विल फाइट विद रिकी टिकी एंड इफ ही विल फाइट विद रिकी टिकी तो रिकी टिकी तुम तो गए काम से। उसने उसकी थिकनेस देखी, हुड मीन्स ऐसे होता है ना, दिस इज कॉल्ड हुड, ये सर ऐसे, उसके पीछे की यहाँ की उसने थिकनेस देखी, मोटाई देखी और फिर उस तो घबरा गया। उसने कहा फिर यहाँ भी पकड़ने को बहुत मुश्किल है उसका और नहीं बाइट कर सकता, इतना मोटा है वो नाग, और अगर उसकी टेल पे बाइट करते तो ऑब्वियसली चलो नाग को और गुस्सा आ जाएगा और ही विल नॉट स्पेयर रिकी टिकी एंड नाग विल गेट मोर एंग्री। इट मस्ट बी द हेड ही सेड एट लास्ट। अब वो हेड और टेल में से सोच रहा था एंड देन ही सेड कि इट इज द हेड टू बेस्ट प्लेस टू बाइट हिम। द हेड अबव द हुड, अब ये हुड मीन्स ऐसे है, इसके ऊपर यहाँ पर ये बेस्ट प्लेस है रिकी टिकी थॉट टू बाइट हिम एंड वंस आई एम देयर आई मसंट लेट गो। और कह रहा अगर मैंने यहाँ पे एक बारी में उसको यहाँ पे बाइट कर लेता हूं तो मुझे इतना जोर से उसको पकड़ना है दैट आई शुड नॉट लीव हिम एंड आई विल नॉट लीव हिम, मैं उसको जाने नहीं दूंगा और मेरे उससे पकड़ से ये छूटना भी नहीं चाहिए। देन ही जम्प्ड, द हेड वॉज लाइंग अ लिटल क्लियर ऑफ द वाटर जार। और फिर बस इतना सोच के रिकी टिकी ने ही जम्प्ड ऑन दैट नाग एंड बिट हिम ऑन हिज हेड। और बिकॉज वाटर जॉग में से क्लियर वो हेड दिख रहा था, रिकी टिकी बिट डाउन विद ऑल हिज माइट मतलब पूरे फोर्स ताकत के साथ रिकी टिकी ने उसके सर पे काटा एंड ब्रेस्ड हिज बैक अगेंस्ट द बल्ज ऑफ द रेड earthenware jar to hold down the head। और चिल्ड्रन, earthen jar मतलब मिट्टी का, वो मिट्टी का पूरा जार था, जग था, उससे उसने सर पे उसके काटा और पूरी ताकत के साथ, फोर्स के साथ उसको काटा और अपनी पीठ लगा ली उस मिट्टी के बर्तन से ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। रिकी टिकी उसने उसको काटा और अपनी पीठ लगा ली उसका सपोर्ट लेने के लिए उस मिट्टी के बर्तन से, टू होल्ड डाउन द हेड, उसके सर को टाइट से पकड़ने के लिए। दिस गेव हिम जस्ट 1 सेकेंड्स परचेज एंड ही मेड मोस्ट ऑफ इट। और इस सहारे से उसको बड़ा हिम्मत मिली और उसको थोड़ी सी ताकत मिली और वो उसको पकड़ सका। देन ही वॉज बैटेड टू एंड फ्रो लाइक अ रैट शेकन बाय अ डॉग। और फिर नाव, इट वॉज टर्न ऑफ नाव नाउ, एंड जैसे एक डॉग एक रैट को मुंह में लेके इधर से उधर फेंकता है, लाइक दिस नाग ने उसको इधर से उधर ऐसे करके नाग थ्रू
डिड विद रिकी टिकी। रिकी टिकी उसने ऐसे करके उसको इधर से उधर फेंका, लाइक ही वॉज लाइक अ रैट इन माउथ ऑफ अ डॉग। डॉग के माउथ के लिए रैट कितना छोटा है, स्मॉल, और उसको इजीली ही डज लाइक दिस। सो नाग आल्सो डिड दिस विद रिकी टिकी। बैक एंड फोर्थ ऑन द फ्लोर, उसको इधर पटका और ऐसे पटका फ्लोर पे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अराउंड इन ग्रेट सर्कल्स, और फिर उसको खूब रिकी टिकी को उसने इधर पटका उधर पटका, खूब पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर पटका नीचे पटका, हर तरफ से उसको जमीन पर खूब पटका। His eyes were red and he held on as his body was whipped over the floor. अब रिकी टिकी की आई जो है वो रेड हो गई थी, but he held on as his body was whipped over the floor. कि जैसे अब वो सांप उसकी बॉडी को, पूरी बॉडी को ऐसे पटक रहा था जमीन पे, तो उसकी बॉडी बहुत जोर से मार रहा था, लेकिन उसने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी, उसके सर से रिकी टिकी ने पकड़ नहीं छोड़ी और अपनी सांसों को और हिम्मत को बांधे रखा। He was dizzy, aching and felt shaken to pieces. डिजी मतलब जब हमें चक्कर आता है, जी घबराता है, उसको ऐसा रिकी टिकी को फील हो रहा था, पूरी बॉडी दुख रही थी और उसको लग रहा था कि अब मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था उसको, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से उसको नाग रिकी टिकी को फ्लोर पे पीट रहा था, ऊपर नीचे ऐसे इधर उधर फेंक रहा था। तो ही वॉज, फिर जी घबरा रहा था उसका, उसको घुटन हो रही थी एंड ही वॉज फील लाइक अब उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, जैसे इतना दर्द हो रहा था उसको। बट वेन समथिंग वेंट ऑफ लाइक अ थंडर क्लैप जस्ट बिहाइंड हिम, और इतने में उसको ऐसे जैसे पीछे, थंडर क्लैप मीन्स जब बिजली कड़कती है तो जो आवाज होती है, चिल्ड्रन, गर्जना जो होती है, उसको वैसा अपने पीछे सुनाई दिया एकदम से। A hot wind knocked him senseless and red fire singed his fur. इतने में उसको एक गर्म हवा का झोंका उसके पास में आया और उसका जो फर था वो थोड़ा सा जल गया। The big man had been wakened by the noise and had fired both barrels of a shotgun into Nag. और why? What was this? Big man means Teddy's father. Teddy's father woke up. वो इन दोनों की लड़ाई से, शोर से, आवाज से उठ गए थे एंड ही 2 barrels of shotgun, मतलब शॉटगन थी लंबी, उसमें 2 ही गोलियां थी और वो दोनों गोलियां उसने नाक पर चला दी थी। रिकी टिकी held on with his eyes shut. For now he was quite sure he was dead. But the head did not move and the big man picked him up and said, "It's the mongoose again. Alice, the little chap has saved our lives this time." Now see, Ricky Tikki held on with his eyes shut, for now he was quite sure he was dead. अब रिकी टिकी को लगा कि बस मेरा काम तो हो गया। उसने अपनी आंखें से जोर से बंद कर ली एंड ही थॉट कि बस कि अब काम हो गया। फिर उसने देखा बट द हेड डिड नॉट मूव, लेकिन वो सांप का सर बिल्कुल भी नहीं हिला। एंड द बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड, और फिर उसने प्यार से बिग मैन, टेडीज फादर को, टेडीज के फादर ने उसको रिकी टिकी को उठाया और फिर कहा, अरे ये तो हमारा प्यारा मंगूस है। एलिस, टेडीज की मदर को कहा कि एलिस, अरे ये तो हमारा प्यारा मंगूस है, इसने फिर हमारी जान बचाई है। एंड दिस वे रिकी टिकी saved his family children. If he wouldn't have took the action at that time, then Nag would have bit Teddy's parents, right? अगर उसने उनकी जान बचाने की नहीं सोची होती और उस समय जान नहीं बचाई होती, लड़ाई में नहीं कोशिश की होती, तो नाग दोनों को काट लेता, आराम से तीनों को काट लेता। बट उसने लड़ाई की और इन दोनों लोगों की लड़ाई की आवाज से ही टेडीज फादर वोक अप, वो उठे और उन्होंने अपनी दोनों गोलियां उस पर, नाग पर चला दी एंड नाग वॉज डेड, और नाग वहीं पर मर गया। सो दिस वॉज आवर स्टोरी चिल्ड्रन। नाउ यू हैव टू डू इट्स
word meanings, and then we will do its book exercise and question answer. Now see children, first see word meanings. How you will do its word meanings? You have to do in the same handwriting as I am doing children, and in the same manner. पैसा भी लग गया। ठीक। हाँ। मते आदमी को नहीं। Thick brown, sorry, fur it is. Okay, instead of word meanings, I think we should do its book exercise first, children. Now first come to its book exercise, true false, given on page 21. रिकी टिकी वॉन्टेड टू किल छुचुंदर, वो छुचुंदर को मारना चाहता था. नो चिल्ड्रन, इट्स फॉल्स. एक्सरसाइज ए, ट्रू एंड फॉल्स. नाग एंड नगीना वर विस्परिंग इन टेडीज बेडरूम. क्या वो टेडी के बेडरूम में थे? नो, इट्स ऑल्सो फॉल्स. दे वर इन टेडीज मदर्स bathroom. Nagina had laid eggs in the cabbage patch. No melon bed hatch actually. This is also false, children. She had laid eggs in melon bed patch. Nag was coiled around the bath. No, he coiled around that water jug. Okay, he coiled around that water jug. This is also false, children. Rikki Tikki bit Nag's head. Yes, true. नाग के सर पे ही काटा उसने उसको. Then the big man shot Nag. उसने नाग को मार दिया. Yes, it's also true. Now exercise B, first A. This also you have to do in book only, children. But are you sure that there is anything to be gained by killing the people? Who said these were to whom? ये सब किसने कहा था? नाग ने नगीना से. नाग said to Nagina. Children, as this is name, these are names, so we will write it in capital letters. Its B part is, what does the hesitation of the speaker to kill people tell us about the speaker? अब नाग नहीं मारना चाहता था, but Nagina wanted. That he was not as bad as Nagina. वो इतना बुरा भी नहीं था.
He was not so cruel. वो इतना बुरा नहीं था. So cruel. Now second, A part. And if he fights, oh Ricky. Who said these words? ये रिकी ने कहा. First is Ricky. Ricky Tikki said to himself. उसने अपने आप से ही कहा. Ricky Tikki. Who is he? Nag. Write in one single word, children. आप ऐसे भी लिख सकते हो. He is Nag. Now see, what does the speaker mean by oh Ricky? Oh Ricky का मतलब है कि रिकी तुम तो गए. By this the speaker is feeling like on himself. Okay, children. So this book exercise you have to do in your book, and word meanings you have to do in notebook. That's for today. Bye everyone. Thank you.